जय जय श्री राम। ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲದಂತೂ ಕಾಣಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲದಂತೂ ಕಾಣಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ. ಅದೋ ನೋಡು ನೋಡು ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನು, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನು. ಮನುಜ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಹಲವು ದಶಕ ಕಾದನು, ಮನುಜ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಹಲವು ದಶಕ ಕಾದನು. ಗುಮ್ಮಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಂದಿರ, ಗುಮ್ಮಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಂದಿರ. ನಿಷ್ಕಳಂಕನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ರಾಮಚಂದಿರ. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್, ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್. ಅದೋ ನೋಡು ನೋಡು ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ. ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪಾಲಿಸಲು ಒಂದು ಕಾಡು ಅಲೆದ, ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪಾಲಿಸಲು ಒಂದು ಕಾಡು ಅಲೆದ. ಕಲಿಯುಗದಲು ನ್ಯಾಯ ಬಯಸಿ ಗುಮ್ಮಟದಡಿ ಉಳಿದ, ಕಲಿಯುಗದಲು ನ್ಯಾಯ ಬಯಸಿ ಗುಮ್ಮಟದಡಿ ಉಳಿದ. ಅಸುರರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮರಳಿ ಪಟ್ಟವೇರಿ ಮೆರೆದವ, ಅಸುರರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮರಳಿ ಪಟ್ಟವೇರಿ ಮೆರೆದವ. ಇತಿಹಾಸದಿ ಅಜರಾಮರನಾಗೆ ಎಂದು ಉಳಿವವ. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್, ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್. ಅದೋ ನೋಡು ನೋಡು ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಅದೋ ನೋಡು ಕಟ್ಟುತಿಹರು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲದಂತೂ ಕಾಣಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲದಂತೂ ಕಾಣಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್, ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ್.
सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई जाए काल पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। ये भगवान राम की स्तुति में लिखी गई लाइनों में अल्लाह शब्द कहाँ से आ गया? बताइए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, इनके आगे की लाइनें क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नहीं, ये ओरिजिनल भजन है ही नहीं। अब असली भजन सुनिए। असल में ये भजन पंडित लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था और इस भजन की असली पंक्तियाँ ये हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शाली ग्राम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी ने इसमें अल्लाह शब्द अपनी मर्जी से जोड़ा था। आजादी के समय गांधी जी ने इस भजन को अपने हिसाब से बनाया और देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या एक हिंदू भजन को ऐसे दुनिया के सामने रखना सही है? आज भी हम में से ज्यादातर लोगों को इन ओरिजिनल लाइंस के बारे में पता तक नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हिंदुओं को अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता लग सके। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा
जय जय राघव सीताराम जानकी रमण सीताराम जय जय राघव सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? हिंदू भाइयों ने दिया। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की। घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी, सज धज के ತಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಿ ಲೂಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿ ಲೂಸ್ JDS, ವಿ ಲೂಸ್ NCP, ಇವೆಲ್ಲ ಹರದೂಷಣ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಪೋಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊಲದಂತಿದ್ದಂಥ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ದನಗಳೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿ 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 ಏನು ತಿಂತಿದ್ವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಈಗ ಬೇಲಿ ಭದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇ ಬಿಟ್ರೆ ಮೋದಿ, ಬಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೋದಿ. ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್! ಜಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ, ರಷ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇರಾನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. Even America is our friend in a way. Only Pakistan is not our friend. ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುರಿಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮುರಿತೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುರಿತೀವಿ, ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಮನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕೊಡುವುದು ಒಂದೇ, ಮೋದಿಯವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕುವುದು ಒಂದೇ. ಇಂಥ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆಂದೆಂದೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, asking excuse. Some of my Kannada may not be understand by you. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿ, ಚಿರಂತನವಾಗಿ ಅವಳು ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. और लोग भी कैसे कैसे, भाई छोड़िए, पत्नी छोड़िए, पिता छोड़िए, माता छोड़िए, शत्रु भी कैसा भाई। इस कहानी का तो विलेन भी कितना खूबसूरत है, कितना कमाल का विलेन है। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, पुलस्त का नाती है भगवान शंकर का अनन्य भक्त, दशग्रीव। 10 सिर नहीं है उसके, ये सम्मित है, ये जो रामलीला में लगा देते हैं। 10 दिमागों के बराबर का IQ है। जिसके ऊपर 10 सिरों की कृपा चलती हो, 10 काम एक साथ करता हो, 10 तरह से सोचता हो, उसका नाम दशानन है। 10 सिर वाला है वो। 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं। शनि के ऊपर तो पैर रखे बैठा है, फिर भी राम से हार गया। क्यों हार गया? कारण बताता हूं। राम इच्छाओं से मुक्त हैं और रावण इच्छाओं के पाश में है बंधा हुआ।
फिर जागना कि रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। आपको पता है कि जब भगवान ने युद्ध शुरू किया तो पूजा की। राम ने कहा जामवंत से, जामवंत सबसे सीनियर हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पोते हैं, रावण के दादाजी के दोस्त हैं, पुलस्थ मुनि के नाना के। कहा कि प्रभु महाराज जामवंत जी, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूं। जामवंत ने कहा करिए महाराज। तो बोले मेरे आराध्य तो शंकर हैं, शंकर राम की पूजा करते हैं और राम शंकर की पूजा करते हैं, इस कहानी से बड़ा समन्वय किसी का नहीं हो सकता। जामवंत ने कहा पूजा कर लीजिए महाराज। बोले मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, शिव को मानने वाला, और मैं वैष्णव हूं तो वैष्णव भी हो। उन्होंने कहा कि इस जंगल में, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहां मिलेगा भगवान। तो उन्होंने कहा पूजा कैसे होगी फिर। जो जामवंत ने कहा एक पंडित मेरे ध्यान में है, पर वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। बोले कौन। बोले पुलस्थ मुनि का नाथी महारथी रावण, वो शिव का भक्त है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए। सोचिए जिसको हराने जा रहे हैं उससे पूजा। राम ने जामवंत से कहा कि महाराज पूछ के तो आइए, अगर महापंडित रावण आज्ञा दे दें इस यज्ञ के लिए तो मैं कर लूं। रावण को पता चला कि जामवंत बुलाने आए हैं। रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे ही दादा जामवंत आए कोई उनसे प्रश्न ना करे, उन्हें बस महल का मार्ग दिखा दे, हाथ जोड़ के सब चरण छुएं। जामवंत पहुंचे, रावण किले के द्वार पर चरण छूने आया, कहा कि पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। जामवंत ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी अतिथि सेवा देखकर। बिठाया, पूछा कैसे आए हैं। जामवंत ने कहा मैं एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूं। एक मेरे साथ दो यजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं युद्ध शुरू करने के लिए। उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो शैव भी हो और वैष्णव भी। तुमसे अधिक गुणी व्यक्ति तो पृथ्वी पर नहीं है, क्या उनका पुरोहित बन सकोगे। क्या पूछा रावण ने, पहला क्या करैक्टर है, वाह। रावण ने कहा जहां तक मुझे सूचना है आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है। जामवंत ने कहा हां दशरथ, वे ही दोनों हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे। उसने हां ना नहीं करी, फिर बोला क्या उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय। जामवंत ने कहा हां उनका यही उद्देश्य है, क्या आप स्वीकार करेंगे। उसने कहा मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे, अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ कराऊंगा। जामवंत ने कहा कि क्या मुहूर्त निकला। उसने नवग्रहों को बुलाया, बोले इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। वो तो अपने ही हाथ में था, तू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तू फुल कैबिनेट। बता कितने बजे। बोले जी सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए। तो उसने कहा ठीक है, 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा आचार्य हो गया अब तो रावण। आचार्य पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं। उसने कहा आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में हैं, अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेके आए, तो मैं लेके आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा बेटा अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूं, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है, कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा, लेकिन एक
विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना। क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, मैं पूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है। पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है ये। सुबह यही हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई। बालुका की मृत्यु से एक विग्रह बनाया राम ने अपने ओजस्वी हाथों से। राम आजानुबाहु हैं, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। महाराणा कुंभा वे भी आजानुबाहु थे। कभी कुंभलगढ़ के किले में जाइए, 3 फीट का शिवलिंग है, नीचे बैठ के अपने ही हाथ से लोटे से रुद्राभिषेक करते थे बिना उठे। वे भी सूर्यवंशी थे। राम आजानुबाहु थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार करा। धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम करा। आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। ओम गणपति गंगावाय। अब ये कि पत्नी कहां से आए? आचार्य ने पूछा राम से। मेरे यजमान विवाहित है? राम ने कहा हां आचार्य मैं विवाहित हूं। अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि वो आपके पार्श्व में आकर बैठे। राम ने कहा आचार्य मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत ने कहा आचार्य अब पूजा कैसे होगी? बोले पितामह मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर सामग्री किसी भी तरह की पूरी ना हो, कोई व्यवस्था पूरी ना हो, तो आचार्य का धर्म है कि वो पूरी व्यवस्था बना के लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। अपहरण गई हुई मां हमारी जगत जननी भारतेश्वरी पार्श्व में बैठी। पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूं कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण ये पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें। मैं आशीर्वाद देता हूं। हमारे गांव में गीत गाया जाता था, बना पुरोहित रामचंद्र का जय का वर दे आया। जब चलने लगे तो राम ने पूछा, बोले आचार्य दक्षिणा? तो आचार्य हंसा। बोला त्रैलोक्य की संपदा आपके आचार्य के पास है, कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा मेरा यजमान? तो राम ने कहा कि मैं रघुवंशी हूं, दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा, आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम ने कहा उस समय में देने योग्य बचा या ना बचा? आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने दक्षिणा मांगी, उस पर रावण को भी राम की तरफ से प्रेम भेजा जा सकता है। आचार्य ने कहा मेरी दक्षिणा यही है कि आचार्य का जब अंतिम समय आए तब दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहें। एक अंतर समझ लेना राम और रावण में। आप ढूंढना आपके अंदर रावण है कि राम है। राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की पंचकन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है नीचे निश्चेष्ट, उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा वो कहां गया जिसने इसे मारा?
लोगों ने कहा वहां बैठा, समुद्र के किनारे शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है, और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए कि इतना रक्तपात क्यों हुआ, दुखी है राम लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, कमांडो खड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन देखा कि माता मंदोदरी आ रही है तो पुलिस वाले हट गए, वानर हट गए, पीछे से पहुंची। चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलटकर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा, फिर किस लिए आई मां? मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़ के नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि मां आपको पता चला क्या है? बोले हां पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा क्या अंतर है? बोले राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उसमें और तुझमें अंतर है। राम मंदिर की हैरान कर देने वाली बातें। नंबर 1, राम मंदिर की नींव रखने के लिए देश भर से करीब 2587 पवित्र स्थान से मिट्टी एकत्रित की गई है, जिसमें यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा जैसे पवित्र स्थान शामिल है। नंबर 2, राम मंदिर की नींव रखने में करीब 150 नदियों के पवित्र जलों का उपयोग किया गया है। इस संग्रह में 8 से भी ज्यादा बड़ी नदियां, 3 समुद्र और श्रीलंका के 16 स्थान से पवित्र जल लाया गया है। साथ ही मानसरोवर के जल का भी उपयोग किया गया है। नंबर 3, इस मंदिर के नीचे करीब 2000 फीट की गहराई पर टाइम कैप्सूल को रखा गया है। इस कैप्सूल से राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान राम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश है। इस कैप्सूल से हजारों साल बाद भी लोग इस मंदिर के बारे में जान पाएंगे। नंबर 4, भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाने के लिए 6 लाख साल पुरानी शालिग्राम पत्थर नेपाल से अयोध्या लाए गए हैं। नंबर 5, इस मंदिर को पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह के मेटल जैसे लोहे और स्टील का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सौंदर्य सौशील्य सम्मोहना नित्य कारुण्य सौजन्य सद्भावना दिव्य सौंदर्य सौशील्य सम्मोहना नित्य कारुण्य सौजन्य सद्भावना सर्वशस्त्रास्त्र शक्ति प्रभाधारणा सत्य सिंहासना धर्म संस्थापना न्याय विश्लेषणा पोषणा स्नेह संभाषणा भूषणा वेद वेदांग शास्त्रार्थ विद्याधना आदि काव्यामृतानंद संवर्धना राम सीता सती प्राणनाथा सदा जानकी प्रेम गाथा महाराज्ञी वैदेही वीणा विनोदा नमस्ते 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 नमः नमस्ते 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 नमः। लिया जाता था कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। तो क्यों? क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी, माता अपने बच्चे का पहले से निर्माण करती थी, उसको
स्कूल से पहले माता पूरे शिक्षा दे दिया करती थी, अब माताएं फोन दे देती हैं कि रोएगा चल ये वाला फोन पकड़ ले। तो गलती तो माता पिता की खुद की है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें तो एटलीस्ट सिखाएं। एक बच्चा जो 3 साल का मदरसे जा रहा है उसको पूरी आयतें याद है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी गीता के 10 श्लोक तो कम से कम आने चाहिए? एक श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कितने श्लोक है एग्जैक्टली गीता में, कितने अध्याय हैं। उसको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि कितनी पुस्तकें धर्म ग्रंथ हैं हमारे, कितने हैं, उसको ये भी नहीं पता। और माता जनवाना भी नहीं चाहती क्योंकि उसको मॉडर्न बनाना है अपने बच्चे को। अरे छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, भगवान के सामने हाथ जुड़वाइए, खाना जब खाए उससे पहले हाथ जुड़वाइए, बताइए कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो उस ईश्वर की वजह से है, ये बताइए उसको। संस्कार तो माता पिता ही देंगे और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है अगर बच्चा किसी और दिशा में जा रहा है। जब बच्चा बड़े होकर लव जिहाद के चक्कर में फंसता है, लड़की जब लव जिहाद के चक्कर में फंसती है तो आपको वो बुरी दिखाई देती है। तो आपने कौन से ऐसे संस्कार दिए उसको? कब गार्गी बनाने की कोशिश करी, कब अपला बनाने की कोशिश करी, कब गायत्री बनाने की कोशिश करी? आपने नहीं करी, आपने कभी भी कोशिश। और आप आज कह रहे हो कि वो लव जिहाद के चक्कर में फंस रही है। क्यों ना हम सब हिंदू मिलकर एक प्रहर करें? गुड मॉर्निंग के स्थान पर जय श्री राम बोलेंगे, गुड नाइट के स्थान पर राधे राधे बोलेंगे, ओके के स्थान पर ओम का प्रयोग करेंगे और फोन पर हेलो के स्थान पर हरि ओम बोलेंगे। ये वीडियो 3 लोगों को जरूर शेयर करें